पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर राग अलापने और भारत से चुनौती का रोना रोने के बाद भारत ने भी जमकर फटकार लगाई है। शहबाज शरीफ ने यूएन के मंच पर एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला और आरोप लगाया है कि उसे भारत की ओर से धमकी मिलती रहती है। इसके बाद यूएन में भारतीय राजनयिक भविता मंगलन ने यूएनजीए की राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए फिर से दुनिया के सामने आतंक के पर्याय बनने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की आतंकी घटनाओं में जिस देश के फिंगरप्रिंट शामिल है, जिसने बांग्लादेश में नरसंहार करवाया, आखिर वो इस तरह का मजाक यूएन के मंच में कैसे कर सकता है। भारत ने यूएनजीए में कहा, इस सभा को आज सुबह ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उपहास का गवाह बनना पड़ा। दुनिया भर में आतंक का पर्याय ड्रग्स तस्करी के लिए पहचाने जाने वाले देश ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के बारे में दिए गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण की बात कर रही हूँ। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पर आतंक के नामी है और पड़ोसी के खिलाफ आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। भारत ने यह भी उल्लेख किया है कि 1971 में नरसंहार कराने वाला और भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कराने वाला देश असुरता और फोबिया पर बात नहीं कर सकता। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शरण देने वाले पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री का भाषण अस्वीकार्य है। पाकिस्तान का झूठ और आतंकवाद के साथ संबंध विश्व को साफ साफ नजर आता है। बार बार झूठ बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। हमारा स्पष्ट और उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। President, heads of state and government, excellencies, delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning. Qala ya abati inni raitu ahda ashara kawkaban wa shamsu wal qamar. And he said, "Oh my father, I have seen Qala ya 11 bunayya planets la and the sun taqsus and moon ru'yaka ila bowing to me." ikhwatik He said, "Oh فيكيدوا لك son, do كيدا not tell your إن story to الشيطان your للإنسان brothers. They will devise a عدو مبين. scheme for you." The صدق الله مولانا devil العظيم. is the enemy Mr. of President, humans. it's a matter of great honor for me to address the United Nations General Assembly for the second time as the Prime Minister of a country that has always been a proactive member of the UN Assembly. I would like to congratulate you and wish you all the success, Mr. President, on your election as the President of the 79th session of the UN General Assembly. I would also like to appreciate the efforts of Ambassador Dennis Francis for his skillful stewardship of the 78th session of the UNGA. Mr. President, the father of our nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, declared in 1947 that we stand by the United Nations Charter and will gladly make our full contribution to peace and prosperity of the world. Pakistan has stood by this commitment unwaveringly. Today, we are facing most daunting challenges to the world order. Israel's genocidal war in Gaza, a dangerous conflict in Ukraine, destructive conflicts across Africa and Asia, rising geopolitical tensions, resurging terrorism, galloping poverty, stifling debt, and the mounting impact of climate change, we feel the chill of a new world order. In response to these challenges, our Secretary General Antonio Guterres called for the Summit of the Future. It led to the adoption of the 54 actions on development, peace and security, technology and global governance in the Pact of the Future. Mr. President, today I stand before you to express the searing pain and शहबाज शरीफ ने यह कहा था।
आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि भारत को अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला वापस लेना चाहिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी और इजराइल को लेकर शुरू की और फिर अचानक कश्मीर पर आ गए। शरीफ ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। भारत ने सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने से इनकार कर दिया है। इस प्रस्ताव में कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने को एक तरफा कदम बताया। शरीफ ने आरोप लगाया है कि भारत कश्मीर की जमीन और संपत्तियों को जब्त कर रहा है और मुस्लिमों को कश्मीर में अल्पसंख्यक करना चाहता है। वहीं इसके अलावा कश्मीर में अपने लोगों को बसाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।